ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਹੈਲਮਟ ਉਤਾਰ ਲਓ ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਾ ਦਾ? मैं तो मोहम्मद इफ्तिखार ਮੁਹੰਮਦ ਇਫਤਖਾਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਫਤਖਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ? आसिफ बखर दे ਪੱਖਰ ਲਈਆ ਪੱਖਰ। लिया बखर। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਕੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ना जो भी करता संडोरिस ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ Job ਸਟੋਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ? ये पार्ट टाइम है। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟ ਇਹ ਬਸ- ਟਾਈਮ? ਜੌਬ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? जो भी गुजारा नहीं हो रहा। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਰ पार्ट टाइम जॉब करनी जरूरी है ना। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਬੈਕੀ ਦਾ? बस अल्हम्दुलिल्लाह 500-700 बन जाते हैं। पार्ट टाइम 3-4 घंटे चला लेना। ਅੱਛਾ 500-700 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 है। 40,000। जी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? हाँ किराए पे लिया हुआ रेंट पे। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ फैमिली इतने है। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਭਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हाँ एक्सीडेंट काफी हो रहे हैं। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ? एक तो सिस्टम अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो रहा है क्योंकि ना फ्लाईओवर बना रहे हैं। हाँ। इधर आप देख रहे हैं फ्लाईओवर बन रहा है सही है। तो क्योंकि फ्लाईओवर जिधर नहीं होंगे वहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि एक्सीडेंट के। ठीक। ट्रैफिक बढ़ जाती है। अगर एक साइड बंद हो जाए तो ट्रैफिक एक घंटा जाम हो जाए। हम बैक के चलाते हैं हम पता है। हाँ। तो जैसे ये जगह बंद की इन्होंने सामने आपको बताया फेट के सामने और F9 के, जी जी। तो वो ट्रैफिक बंद हुई है उसकी वजह से काफी सारा नुकसान हुआ है। इतना रश हुआ है कि एक मतलब जो बंदा घर से आधा घंटा पहले निकलता वो घंटा पहले निकलता था। सही। और एक्सीडेंट के चांस इस वजह से बढ़ रहे हैं। आप उन्होंने काफी अच्छा काम कर रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो बाकी ये हो गया गाड़ियाँ इतनी ज्यादा गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर से तार होता जा रहा है। ये हालात बने पाकिस्तान के। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇhtiyat ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ कानून की पासदारी करनी चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने नहीं चाहिए क्योंकि अक्सर लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देना वो कहते हैं नहीं तोड़ेंगे तो दूसरे भी नहीं तोड़ेंगे और दूसरे सारे सिग्नल तोड़ देना फिर एक्सीडेंट इस वजह से हो जाना। और स्पीड ऐसे चलाने जो ट्रैफिक इस्लामाबाद में ज्यादा है। लोग जो वन व्हीलिंग करते हैं इसमें भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। अक्सर लोगों को आप देखा होगा कि वन व्हीलिंग करते हुए ये बंदा मर गया, उसकी टांग टूट गया, ये हो गया। इस्लामाबाद में ना लोफरबाजी ज्यादा है जिस वजह से लोग वन व्हीलिंग करते हैं और एक्सीडेंट कर बैठते हैं। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਹਾਦਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਜਲਦੀ ਬਾਈਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਬਾਕੀ ਰਹਿ जाना बाइक वालों क्योंकि ज्यादा एक्सीडेंट होते क्योंकि ना बाइक या फूड पॉइंट हो गया जो चीजें वाले इनके एक्सीडेंट कुछ ज्यादा चांस है क्योंकि वो ज्यादातर मोबाइल देखते हैं। लोकेशन देखने के चक्कर में आगे मोबाइल रखा होता है, मोबाइल गिरने का खतरा होता है और लोकेशन का भी खतरा होता है और इन चीजों को संभालते हुए एक्सीडेंट हो जाता है। मोबाइल गिर जाता है। मेरे से खुद भी कई दफा हुआ मेरा मोबाइल गिर क्योंकि मोबाइल मैंने फ्रंट पर रखा होता है। अगर ऐसे कोई सपोर्ट नहीं है जिसको मैं ना रखूं तो जिस वजह से मोबाइल गिरने तो जैसे हम ब्रेक देते हैं तो ब्रेक देते हैं मोबाइल एक साइड पे गिरने खतरा फिर वो इस तरह एक्सीडेंट काफी हो जाते हैं। मोबाइल भी गिर जाता है, कोई पीछे से ठोक देता है, ब्रेक अचानक लगा देना, इस वजह से ना एक्सीडेंट बाइक वालों के मैं चाहता हूँ मेरे ख्याल में ज्यादा होते हैं। और चीजें वालों को मैसेज देना चाहेंगे कि आप मतलब कि ये है कि आपकी जान से कीमती कोई चीज नहीं है। हाँ जान से कीमती कोई नहीं। तो आप जरा एहतियात से चलाया करें, 2-4 मिनट लेट चले जाएं कोई बात नहीं, मतलब कि कोई इतना इश्यू नहीं होता। तो मेरे बैक वालों को ये पैगाम है। लेकिन बैक वाले तो बैक
ये मोबाइल यूज नहीं करते, जो ड्राइव चलाते हैं ना या दूसरा चलाते हैं यंगो, तो वो चलाते हैं, उनके लिए एक यहाँ पे स्टैंड लगा होता है, उसके लिए वो यूज करें, वो सबसे बेहतरीन है। और एहतियात से चलाएं, ज्यादा तेज चलाने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने रिस्क देना ना वो आपको मिलेगा उस दिन। चाहे आप 500 रिस्क देना ना, आप दिन के 3 घंटे में कमा लेना, 8 घंटे फ्री करे ना, आपको सारे नहीं मिलेंगे। ये हकीकत है, क्योंकि मैं खुद चलाता हूँ, मुझे 5 दिन मुसलसल 500 बनाए, और मैं 1 घंटा 2 घंटे आराम खड़ा रहा हूँ, 2 घंटे 1 घंटे में 500 बन गया, मैं 3 घंटे खड़ा, सवारी नहीं मिली, क्यों? मेरे नसीब में 500 था, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाईजान आपसे बात करके, बहुत अच्छी आपकी एडवाइस आपने जो दिया हमें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी बॉस।